پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ مسیح خداوند کے مبارک اور جلالی نام میں آج شب پھر کرائسٹ ویژن یورپ کی آئی ڈی پر موجود ہمارے جتنے بھی سامعین بھائی اور بہنیں ہیں، فیس بک کے کئی پیجز پر، یوٹیوب اور واٹس ایپ گروپس میں آپ جتنے بھی میرے بھائی اور بہنیں اور بیٹے اور بیٹیاں موجود ہیں، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور خداوند کی تعریف کرتا ہوں کہ آج پھر سے مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آپ سب کے ساتھ مل کر خداوند کی ستائش کے وسیلہ سے برکت پاؤں، دعاؤں کے وسیلہ سے برکت پاؤں، اور اب خداوند کے اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے برکت پانے والا ہو سکوں۔ میں آپ کے توجہ کے لیے اور غور سے خدا کے کلام کی ان گہری اور عمیق باتوں کے سیکھنے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں۔ اور آج پھر ہم یوحنا عارف کی معرفت لکھے گئے خداوند یسوع مسیح کے مکاشفہ کے 18 باب سے سیکھیں گے۔ گزرے ہفتے تک ہم نے 18 باب کی 7 آیت تک، یعنی گزرے ہفتے 6 اور 7ویں آیت پر غور کیا تھا۔ آج آپ کی توجہ 8، 9 اور 10 آیات کی طرف لیے چلتا ہوں، اور یاد رہے کہ اس سٹڈی کے دوران روم سے منتقل ہونے والے اس مخالف مسیح کے دارالخلافہ کے بابل جو پریزنٹ عراق کے قریب اس سرنو تعمیر ہوگا، وہاں پر اس نے جا کر اپنا دارالخلافہ قائم کرنا ہے، اور یوں اس نے مذہبی طور پر ایک نظام شروع کرنا ہے تاکہ لوگ، قومیں اور امتیں اس کے پیچھے چلیں، اور آلریڈی جو نظام مذہبی طور پر ہوگا اغلب ہے کہ اسی کو ہی وہ ہوا دے۔ اور سیکنڈلی، جس باب کی جن آیات پر اس وقت ہم ہیں، وہ ہم اکونامکلی جو کمرشل بابل ہے اس کی تباہ کاری سے متعلق سیکھ رہے ہیں۔ مقدس یوحنا یوں ہمیں بتاتے ہیں کہ میں نے آسمان سے ایک فرشتہ کو جو جلالی اور زور آور ہے اترتے ہوئے دیکھا، اور اس کی یہ آواز سنی، اس بڑے شہر بابل کی بابت جس کی عدالت ہو رہی ہے اور جس کو خدا کڑی سزا دے رہا ہے۔ اس کے کئی ایک اسباب ہیں جن پر اس سے پیشتر ہم غور کر چکے ہیں، لیکن آج چونکہ میں آپ کی توجہ اگلی آیات کی طرف لیے چلتا ہوں، میں ان آیات کو تلاوت کروں گا، اور وقت کی نزاکت کے مطابق میں کوشش کروں گا کہ ان آیات کو آپ کے ساتھ مل کر سمجھ سکوں۔ مکاشفہ 18 باب اور اس کی 8، 9 اور 10 لکھا ہے۔ اس 18ویں باب کی 8ویں آیت سے، اس لیے اس پر ایک ہی دن میں آفتیں آئیں گی، یعنی موت اور غم اور کال، اور وہ آگ میں جلا کر خاک کر دی جائے گی، کیونکہ اس کا انصاف کرنے والا
खुदावन खुदा कवि है और उसके साथ हरामकारी और अय्याशी करने वाले जमीन के बादशाह जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे और उसके अजाब के डर से दूर खड़े हुए कहेंगे, ए बड़े शहरे, ए बड़े शहर, ए बाबल, ए मजबूत शहर, अफसोस अफसोस, घड़ी ही भर में तुझे सजा मिल गई। आयत 8 की जब मैं तलावत कर रहा था तो यहां पर इसके इख्तिताम पर लिखा है, बल्कि सेंटर में जो आयत है फिर से पढ़ लेता हूं, इसलिए उस पर एक ही दिन में आफतें आएंगी। उस पर एक ही दिन में आफतें आएंगी। कौन सी? मौत, गम और कहत, और आग में जलाकर खाक कर दी जाएगी। गा नहीं लिखा, गी। और यह किसकी तरफ इशारा है? हम 7 आयत पर गौर कर चुके हैं जहां बाबल से मुताल्लिक यह है कि वो अपने आप से मुताल्लिक यूं गोया समझता है, एक फीमेल के तौर पर उसको पेश किया गया, क्योंकि वो अपने दिल में कहती है कि मैं मलका हो बैठी हूं, बेवा नहीं और कभी गम ना करूंगी। और अब उसको फीमेल के तौर पर, क्योंकि बाइबल में उसको एक प्रोस्टिट्यूट या कसबी के तौर पर भी कई मकामात पर मुखातब किया गया, क्योंकि उसने गुनाह को रवा यानी कायम किया, जोर दिया, बुत परस्ती को जो खुदा के बरखलाफ है उसने उसको हवा दी। और अब यह कहा जा रहा है कि एक ही दिन में उस पर आफतें आएंगी। यह बाबल की अदालत की बात हो रही है। मैंने पहले भी आपकी खिदमत में इससे मुताल्लिक बात की है कि खुदावन खुदा उस कमर्शियल यानी जो इकोनॉमिकली बाबल एस्टेब्लिश होगा, एक ही दिन में खुदा जो जोर आवर और कवि है आग से उसको भस्म कर देगा। एक ही दिन में, टाइम नहीं लगेगा, एक ही दिन में। और फिर यह भी लिखा है कि इस पर मौत, ये आफतें हैं जो उस पर आएंगी, यानी मौत और गम और काल। आप जानते हैं कि इससे पेशतर हमने मुख्तलिफ घोड़ों पर भी बात की जिन पर सवार थे, और हमने उस घोड़सवार की बाबत भी सीखा है जिसका नाम गोया मौत था, और वो अपनी तलवार से कत्ल करता और हलाक करता चला जा रहा था। चाहे तो हमारी माजी की जो बाइबल स्टडीज हैं आप उनको देख सकते हैं। लेकिन याद रहे कि बाबल पर ये आफात आएंगी, काल, मौत और गम, उसको आग से जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि खुदावन जो इंसाफ करने वाला है, आदिल और मुनसिफ है, खुदावन खुदा वो कवि है, जोर आवर खुदा है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बाबल को मोहलत दी गई थी कि वो खुदा की तरफ रजू लाए, लेकिन रजू ना लाने के सबब से अब खुदा उस बाबल की अदालत करता है। ऐन मुसीबत के जमाने के इख्तिताम पर जब मसीह खुदावन की आमद सानी में उनके सेकंड हिस्से में
जो आमदेसानी का दूसरा हिस्सा है, उसमें जब वो आने ही को होंगे तो उससे पेशतर ये तमाम वाकयात हो रहे होंगे। लेकिन हम ये भी जानते हैं और हमें जानना चाहिए भी कि जहां बाइबल का खुदा मोहब्बत का खुदा है, रहम का खुदा है, पर फजल है, वहां वो खुदा इंसाफ का भी खुदा है और वो बदला लेने वाला है। उन तमाम कौमों और उम्मतों और इंडिविजुअल से जो खुदा के बरखिलाफ बगावत करते और उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलते। यसाया की किताब और उसका 63 बाब यानी 63 और उसकी पहली 4 आयात आपकी खिदमत में तलावत करता चलूं। मसीह खुदावंद की आमद और फिर वो क्या करेंगे। ये कौन है जो अदूम से और सुर्ख पोशाक पहने बुसरा से आता है, ये जिसका लिबास दरख्शां है और अपनी तवनाई की बुजुर्गी से खरामा है। और फिर जवाब आता है, ये मैं हूं जो सादिकुल कौल और नजात देने पर कादिर है। तो फिर सवाल पैदा हुआ कि तेरी पोशाक क्यों सुर्ख है, तेरा लिबास क्यों उस शख्स की मानिंद है जो अंगूर हौज में रोंदता है। और फिर जवाब आता है खुदावंद की तरफ से, मैंने तन तनहा अंगूर हौज में रोंदे और लोगों में से मेरे साथ कोई ना था। हां, मैंने उनको अपने कहर में लताड़ा और अपने जोश में उनको रौंदा और उनका खून मेरे लिबास पर छिड़का गया और मैंने अपने सब कपड़ों को आलूदा किया। क्योंकि इंतकाम का दिन मेरे दिल में है और मेरे खरीदे हुए लोगों का साल आ पहुंचा है। वक्त पूरा हो गया और अब मेरी पोशाक इसलिए सुर्ख है कि मैंने रिवेंज यानी बदला लिया उन लोगों से जो मुखालिफ मसीह और मुखालिफ मसीह के पैरोकार हैं और एंड टाइम तक उन्होंने तौबा नहीं की और खुदा की तरफ रजू नहीं लाए। मुखालिफ मसीह भी और उसके पीछे चलने वाले लोग भी शायद यही समझते हुए होंगे कि हम जोर आवर हैं, हमने खुदा के मानने वालों का काम तमाम कर दिया, उनके खिलाफ जहाद किया और खत्म कर दिया सबों को। लेकिन जो बात यहां नजर आ रही है वो ये कि वो ये नहीं जानता होगा कि वो खुदा जोर आवर खुदा है और फतह आखिरकार खुदावन खुदा की ही है। मैं सोचता हूं कि आज की दुनिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा और कुछ हो सकता भी नहीं। खुदा के वजूद के मुनकर, रोजे अदालत के मुनकर, मसीह खुदावंद के मुनकर और मसीह खुदावंद की निजात बख्श रिहाई का जो मंसूबा है उसको भी वो कबूल नहीं करते और इस दुनिया को जाए ऐश और मौज समझते हैं और वो कहते हैं खाओ पियो और मौज उड़ाओ। और अक्सर मैं कहता हूं, कई लोग ये कहते हैं, ओ जी ए जहान मिठा ते अगला किन्ने डिठा। और फिर ये भी कहते हैं कि जो करना है कर लो, क्योंकि कल किसने देखा है, आखिर मर ही जाना है।
और बेशुमार लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो अपने दिल और अपनी नफसानी ख्वाहिशात की खुशी के लिए जो उनका मन चाहता है वो करते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस के जमाना में भी ऐसे बेशुमार लोग हमें नजर आते हैं जिन्होंने इसी तरह से किया है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि उन पर मौत आएगी, तो दर हकीकत यह मौत उन लोगों के लिए है जो उस हैवान यानी मुखालिफ मसीह की परस्तिश करने वाले और उसकी छाप लेने वाले होंगे मुसीबत के जमाने के इख्तिताम पर। और अगर आपने मसीह खुदावन को पहना हुआ है, नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल किया हुआ है, नया जन्म लिया है, मसीह खुदावन पर ईमान लाए और अब आपका दिल मसीह के दिल के साथ धड़कता है, मसीह के साथ आपकी जो दिल की बात है वो सीधी सीधी है, आपकी रविश खुदावन की मर्जी के मुताबिक और चल रहे हैं, हमारी जो जिंदगी में रूहानी फल है वो इस बात का सबूत है कि मैंने मसीह को पहना हुआ है, तो फिर हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मसीह खुदावन अगर अभी आ जाए तो वो हमें अपने साथ आसमान पर ले जाएंगे। ये तो पीछे रह जाने वाले लोगों की बात है जिन्होंने मसीह को नहीं पहना। वो लोग उस मुसीबत के जमाना से दो चार होंगे और गुजरेंगे। मसीही मोमिनीन के लिए खतरे की बात नहीं है। ये एक बात थी कि मौत एक ऐसी आफत है जो उन लोगों पर आएगी। नंबर 2, गम। और हमने बाइबल से मुताल्लिक एक बार नहीं बल्कि आज की आयत में भी इस बात पर गौर किया है कि वो तमाम लोग जो बाइबल में अय्याशी पर तुले हुए और हर किस्म का काम करते थे अपने मन को राजी करने के लिए, और वो जो तिजारत का काम बाइबल के साथ करते थे, जिनका बाइबल के साथ ताल्लुक और रवाबत थे, जब बाइबल को आग से बसम होता हुआ वो देखेंगे तो फिर वो गम करेंगे, क्योंकि उनकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अब जाती रहेगी। तिजारत का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब खुदा अपने दस्ते कुदरत को बढ़ाकर उस बाइबल को सफाई हस्ती से मिटा रहा होगा। और तीसरे नंबर पर हम कहत देखते हैं, काल, कहत, खुश्क साली। क्यों? जो इस निजाम के तहत, जो कमर्शियल बाइबल के निजाम के तहत चल रहे थे, फायदा उठाते थे अपने पेट के लिए, जब बाइबल ही खत्म हो जाएगा तो उनकी भूख और प्यास तो और बढ़ेगी। यूं आग उस सारे निजाम को मुकम्मल तौर पर खा जाएगी और भस्म कर जाएगी, और फिर पीछे कुछ नहीं बचेगा। तो फिर जब बाइबल खत्म हो गया तो पीछे क्या होगा जो ये लोग खाएंगे? अब वो सब कुछ खत्म हो गया। जब मैं 16 बाब यानी मकाशफा 16 बाब को देखता हूं तो इसकी 17 आयत से जरा गौर से सुनिएगा। और 7वें ने अपना प्याला भरा हुआ, अपना प्याला हवा में उल्टा और मकदस के तख्त की तरफ से बड़े जोर से ये आवाज आई कि हो चुका।
फिर बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुई और एक ऐसा बड़ा भूचाल आया कि जब से इंसान जमीन पर पैदा हुए ऐसा बड़ा भूचाल नहीं आया, कभी ना आया था। और उस बड़े शहर के 3 टुकड़े हो गए और कौमों के शहर गिर गए और बड़े शहर बाबल की खुदा के यहां याद हुई ताकि उसे अपने सख्त गजब की मैं का प्याला पिलाए। और हर टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न चला और आसमान से आदमियों पर मन मन भर के बड़े बड़े ओले गिरे। और चूंकि ये आफत निहायत सख्त थी इसलिए लोगों ने ओलों की आफत के बायस खुदा की निस्बत कुफ्र बका। और फिर जब मैं अहदे अतीक में जाता हूं, दानियल जो अंबियाए अकबर में से एक है, दानियल नबी का सहीफा, इसका 5 बाब और इसकी 25 आयत, तो यहां पर लिखा हुआ है, और वो नविश्ता ये है, ये बेल्तशस्सर की बात हो रही है। आप जानते हैं कि बेल्तशस्सर ने गोया अपने आप को खुदा बना दिया था, और अब आवाज आती है, वो नविश्ता ये है जो तूने दीवार पर देखा, मिने मिने तकीलो फरसीन। और इसके माना ये है, यानी खुदा ने तेरी मुमलकत का हिसाब किया और उसे तमाम कर डाला। तकील यानी तू तराजू में तोला गया और कम निकला। फरीस यानी तेरी मुमलकत मुनकसम हुई और मादियों और फारसियों को दी गई है। यह भी बाबल के ही बेल्तशस्सर की बात हो रही है। तो एक तरफ आप बाबल की तरफ देखिए जिसका मुकाशफा 18 की 8, 9, 10 में मुतालिया करते हैं, जल गया, भस्म हो गया, मौत, गम और काल यानी कहत आया। और इधर आपने दानियल की किताब में भी इस हकीकत को देख लिया है कि कितने क्लियरली यह बात की गई है बेल्तशस्सर के बारे में कि तू तोला गया और कम निकला। खुदा ने कितनी बार बाबल को तोला और कहा कि तू कम निकला, लेकिन बाबल ने खुदा की तरफ रजू लाने की सही नहीं की है। खुदा कितनी बार आज के इंसान को मौका देता है कि ए बाबल लौट आ, बस कर, तौबा कर, रजू ला मेरी तरफ। लेकिन अफसोस कि ये 2 टांगों वाला बाबल खुदा का नाम जपता तो है, लेकिन इसका दिल कहीं और इसकी सोच कहीं और इसका जहन कहीं और है। रस्मी और ट्रेडिशनल इबादत गो शख्स बनता हुआ दिखाई देता है, लेकिन यह क्लियर बात है कि खुदा बदला लेने वाला है। मेरे दिल की बाबत और आपकी दिल की बाबत, मेरी नियत और इरादे और ख्याल, आपकी नियत और इरादे और ख्याल उससे किसी भी तरह से छिपे हुए नहीं है। वो सब कुछ जानता है और देखता भी है। ये क्लियरली हमें नजर आता है। आप जानते हैं कि लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, मैं नहीं तलावत करूंगा, 12 बाब में एक अमीर आदमी का जिक्र है। लगता है जैसे सोने की कुर्सी पर वो बैठा हुआ होगा, अपने मूंछों को जैतून का तेल लगाकर अपने सीने पर हाथ मार के कहता हुआ होगा, इतनी बड़ी फसल, रखने की जगह नहीं, ये स्टोर, ये गोदाम खत्म करो, नए बनाओ, जहां मैं
इस गल्ला को जमा कर सकूं। और फिर मुझे लगता है कि टांग पर टांग रखकर उसने कहा होगा कि फिर मैं अपने आप से कहूंगा, ऐ मेरी जान, खा पी और मौज कर। लेकिन आप जानते हैं, फिर ऊपर से आवाज आती है इस शख्स को कि अरे नादान। वो अपने आप को क्या समझता था? नादान? नो, वो अपने आप को साहिब हिकमत समझता था कि मैं बड़े बड़े स्टोर बनाऊंगा और ये मालो मता वहां पर जमा करूंगा और कई सालों तक खाता रहूंगा। लेकिन आवाज आती है, अरे नादान, तेरी जान आज रात तुझसे तलब कर ली जाएगी, तो बता कि ये सब कुछ जिसके लिए तू करता है ये किसका होगा? इंजील मुकद्दस में खुदाबंद फरमाते हैं, इंसान सारी दुनिया को हासिल कर ले लेकिन अपनी जान का नुकसान उठाए तो क्या फायदा? लिहाजा इस काल और वबा और इस मौत के सबब से और गम के सबब से ये लोग तड़पेंगे और पशेमान होंगे। लेकिन जैसे हमने देखा है कि उसके साथ, बाबल के साथ, अय्याशी और हराम कारी करने वाले लोग, बुत परस्ती, खुदा को छोड़कर और माबूदों के पीछे भागने वाले लोग, जमीन के बादशाह जब बाबल के जलने का हाल देखेंगे, धुआं उठता हुआ देखेंगे, तो उसके लिए रोएंगे और मातम करेंगे कि न जाने कितने डॉलर्स उनके अब नजरे आतिश हो गए और सब कुछ खत्म हो गया, बसम हो गया है। और सिर्फ यही नहीं, अब खुदा के अजाब को तो वो देख रहे हैं, लेकिन लिखा है दूर खड़े होकर वो इस बड़े शहर पर मातम करेंगे और कहेंगे, ए बाबल, ए मजबूत शहर, अफसोस, अफसोस कि तू घड़ी ही भर में मुकम्मल तौर पर फना हो गया। घड़ी भर में तुझे सजा मिल गई। बाबल, तू जो अपने आप को कवि और कमर्शियल और इक्तिसादी तौर पर बहुत कुछ समझता था, तेरी शान कहां गई है? पैदाइश की किताब जब हम 19 बाब और उसकी 24 और 25 आयत को देखते हैं तो वहां हमें कुछ और भी पता चलता है। और वो क्या? तब खुदावन ने अपनी तरफ से सदूम और अमूरा पर गंधक और आग आसमान से बरसाई और उसने उन शहरों को और उस सारी तराई को और उन शहरों के सब रहने वालों को और सब कुछ जो जमीन से उगा था गारत किया। आप जानते हैं कि सदूम और अमूरा के शहरों पर आसमान से आग और गंधक बरसी, क्योंकि उनमें वही बातें पाई जाती थीं जो बाबल में। और अब खुदा अहदे अतीक की इन मिसालों को, खा वो दानियल की है, खा वो यसाया की है, खा वो सदूम और अमूरा की है, उन मिसालों को और उन हकीकी वाकयात को याद दिलाते हुए यह बात क्लियर कर रहा है कि अब बाबल के साथ बिल्कुल ऐसा ही होगा, बल्कि इससे भी बढ़कर। और इब्रानियों का मुसन्नफ 10वें बाब की 31 आयत में कहता है कि जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना बड़ी होलनाक बात है। मेरे अजीज भाइयों,
और बहनों, लाजिम है कि हम जितना जल्दी हो सके खुदावन अपने खुदा की तरफ रजू लाएं। अगर मैं खुद बाबल हूं तो तौबा करके खुदा की तरफ रजू लाऊं, और अगर बाबल जैसे हालात में मैं रह रहा हूं, हर रोज मैं ऐसे हालात में लत-पत हूं, उन सौदागरों की तरह जो बाबल में अय्याशी करते हैं, तो खुदा मोहलत देता और फरमाता है लौट आ, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। और इस बात को मत भूलिए कि इब्रानियों 12:29 में इब्रानियों का मुसन्नफ हमारे खुदा की बाबत जो मोहब्बत है, जो रहम करने वाला है, उसकी बाबत यह भी लिखा है कि वो भस्म करने वाली आग भी है। मोहतात रहिए और उसकी तरफ रजू लाइए। और फिर वो वक्त आएगा कि जब जबूर 24 की वो बात पूरी होगी, और ये जबूर 24 हम सबको आता भी है। हम अपनी इबादत में इस जबूर 24 को गाते भी हैं, जिसकी 8 और 9 मैं तलावत करता हूं। खुदावन यीशु मसीह से मुताल्लिक ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावन जो कवि और कादिर है, खुदावन जो जंग में जोर आवर है। ए फाटको अपने सर बुलंद करो, ए अबदी दरवाजों उनको बुलंद करो, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदा, वही जलाल का बादशाह है। सिलाह। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम इस मुकाशफा की किताब की इन 3 आयात के मुताबिक अपने आप पर थोड़ा सा ध्यान दें और गौर करें और थोड़ा सोचें कि कहीं मैं सर झुका के सब कुछ भूला हुआ तो नहीं हूं कि जो कुछ होगा देखा जाएगा। ये जिंदगी 4 दिन की है और मैं जो ऐश कर सकता हूं वो करूं, लोगों को जितना उल्लू बना सकता हूं बनाऊं, जो मन करता है वो करूं। वाइज की किताब में सुलेमान फरमाते हैं, ऐ जवान, अपनी जवानी में खुश हो, अपने जी को बहला, अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन यह ना भूल कि एक दिन खुदा इन सारी बातों के लिए तुझे अदालत में लाएगा। आए हम अपने आप पर निगाह करें, गौर करें, खुदावंद की तरफ रुजू लाएं और खुदावंद से कहें, खुदावंद मुझे माफ कीजिए, मैंने आपके पैगाम का यकीन नहीं किया, इस पैगाम को जो सलीब का पैगाम है कबूल नहीं किया। मैंने भी यही सोचा कि अगर ये जहान मीठा है तो नेक्स्ट किसने देखा है। मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं खुदावंद, आपका कहरे इलाही मैं नहीं चाहता कि मुझ पर हो। आप कवि और जोर आवर है, मुझे बचा लीजिए। मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता और करती हूं। ईमान लाता हूं कि खुदावंद यीशु आप मेरे निजात दहंदा है। मेरा दिल आप ले लीजिए, मैं आपके लिए जीना चाहता और चाहती हूं। और यकीन जानिए आज ही वो दिन होगा जो आपके जीवन में एक नई उम्मीद के गुल खिलाएगा। अगर आप ही वो है
तो मैं दुआ करना चाहता हूं आपके लिए, ताकि खुदावन आपकी जिंदगी में 4 चांद लगाए और मुकम्मल तौर पर आज अपने आप को खुदावन के स्पुर्द करें, ताकि उस आने वाले गज़बे इलाही से, कहरे इलाही से, खुदा की अदालत से हम बच जाएं। हम दुआ करें। रब्बुल अफ़वाज, इसमें कोई शक नहीं है कि आप खुदाए मोहब्बत हैं, लेकिन आप आदिल और मुनसिफ भी हैं। खुदा बाप, इंसान को आप मोहलत देते रहे और देते हैं भी कि वो आपकी तरफ रजू लाए, और बहुतेरे आपकी तरफ रजू लाए भी हैं। लेकिन बहुत सारे आज इस वक्त इस कलाम को सुन रहे हैं, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपना दिल आपको नहीं दिया, अपने गुनाहों से हकीकी तौबा नहीं की, और खुदावन यीशु आपकी सलीबी मौत को इवजी और कुफारा के तौर पर कबूल नहीं किया। खुदावन, आज अगर मेरे नाजरीन और सामीन में से कोई ऐसा भाई, कोई बहन, कोई बुजुर्ग, कोई बेटा या बेटी है जो अपने आप को आपके स्पुर्द करता है, खुदावन यीशु आपके कुफारे पर ईमान लाता है, मिन्नत करता हूं कि उसके गुनाहों की मुआफी का उसे यकीन दिलाइए, और खुदावन हमेशा की जिंदगी का यकीन उसको हासिल हो जाए। कोई भी खुदावन आपके बगैर रहा हुआ ना हो। और बायन ऐसे ही मैं उन तमाम अजीजों के लिए जो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट्स को लिख रहे हैं, दुआ करता हूं खुदावन अपना हाथ उन पर बढ़ाइए, और यस्सु नाम में अपने लोगों की तमाम तरह की लानतों को बरकत में बदल दीजिए। बीमारियां यस्सु के नाम से जाती रहे, परेशानियां यस्सु के नाम से जाती रहे, कोविड की लानत से आपके लोग, खा वो हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में या दुनिया भर में, बच जाए। और खुदावन, केवल इसके के हमारी मौत की आवाज का नकारा बजे, हमें तौबा की तौफीक अनायत फरमाइए। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, खुदावन यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन एन आमीन। खुदावन आप सबको बरकत बख्शे, और फिर मिलेंगे जब खुदावन की पाक और मुकद्दस मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।